Hello students. So today topic is a inline style sheet. In earlier video I explained types of style sheet, that is a external style sheet, internal style sheet, and in this video I explain inline style sheet. You know, in internal style sheet you create the whole coding in a one single page या single HTML file. Okay, that means in a upper part you create the CSS part, and in a lower part, that in a body part, you create a HTML. So within the HTML page you create the both things, CSS and HTML. Okay, within a head tag you create the CSS part, and within a body tag you create a HTML part. Okay, but in a external style sheet you create two files. One file is a CSS file, and another file is a HTML file. In CSS file, with the extension of .css you create the with the extension of .css, and in a HTML file you create with the extension of .html. Okay, and with the help of link tag, which is used within the head tag, with the help of link tag you link the CSS file to the HTML file. Okay, if you have any confusion then please watch the video again. Okay, in this video I will explain what is a inline style sheet. Inline, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, inline that means within the line. Okay, you create CSS, you create style. Okay, style sheet man, that means you create the page in a attractive manner, presentable manner. That is a style sheet, that is a CSS. Okay, so in a inline style sheet we can even define a style rules for a single tag in a HTML page itself. This is known as defining an inline style. Okay, this is used to apply a unique style to a single tag. To define an inline style, the style attribute is inserted in the specific tag. वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, in a internal style sheet use a style as a tag, but here use a style as a attribute within a tag. Okay, जो भी tag use कर रहे हो वहाँ पर tag as a selector, but here is a tag, that is a HTML part. Okay, so syntax देखिए, tag you here use any type of tag, then use a style attribute. Style is a attribute here. Style attribute then is equal to write as within a inverted comma you write a style rules. Okay, that is a syntax of inline style sheet. Example देखिए, HTML then use head, then title, then head close. then क्या हो गया, head close हो गया. then start body. अब बॉडी में हमने टैग क्या लिया है, ये है CSS वाला इनलाइन स्टाइल sheet. H1 हमारा टैग है. देन स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी क्या ले ली है, प्रॉपर्टी. स्टाइल रूल्स में प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज, तो प्रॉपर्टीज क्या ली है, कलर इज इक्वल टू पिंक. ओके, सो हियर यूज H1 स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट ऑफ H1 टैग इज इक्वल टू कलर. कलर क्या है आपकी, प्रॉपर्टीज है. देन इक्वल टू, वहाँ पर क्या लगाते थे, सेमीकोलन साइन, बट हियर इज अ इक्वल साइन. ओके, देन राइट अ equal sign, then write value is a pink. Okay, then you write the content here. This is an example of inline style sheet. Then H1 tag close, body close, and HTML close. Okay, that is the inline style sheet. You use within the HTML page you use the style tag, yes, style attribute also. Okay, that is the inline style sheet. Okay, next topic is a precedence of style sheet. Precedence of style sheet, that is a when a multiple style sheet can even be linked or applied to a single web page. For example, we can link an external style sheet to an HTML page, that is inline style sheet also. In the case when multiple style sheets are applied to the same HTML page,
the style sheet actually applied is decided on the priority basis. Priority basis, that means who is the most popular, okay, who is the best, which is the best. So that is the precedence of style sheet. So in this style sheet, in the precedency of style sheet, internal style sheet is the highest priority and second one is a inline style sheet. हाईएस्ट अगर कहा जाए तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी किसकी है? हाईएस्ट आपकी है इनलाइन की, सॉरी एक्सटर्नल की, और सॉरी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है आपकी? इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, आपका अगर कहा जाए बेस्ट, इसमें से विच इज़ द बेस्ट, तो आपका क्या है? इंटरनल स्टाइल शीट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट प्रोवाइड अ हाईएस्ट प्रायोरिटी। क्योंकि इसमें किसी, देखिए मैंने एक डिसएडवांटेज बताया था आपको, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी में क्या हो रहा था? एक्सटर्नल स्टाइल शीट में ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपने CSS फाइल एक अलग बनाई है और HTML फाइल अलग बनाई है और CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक करा रहे हो और लिंक हो सकता है मे भी आपकी जो CSS फाइल है वो कहीं पर डिलीट हो जाए, गुम हो जाए। ठीक है, तो आपने जो लिंक कराया है तो फॉर्मेटिंग आपकी किसमें? CSS फाइल में, और लिंक आप करा रहे हो HTML फाइल से। तो अगर वो फाइल डिलीट हो गई तो आपकी जो पूरी फॉर्मेटिंग है वो तो नहीं होगी आपके HTML पेज में। तो इससे क्या होगा? आपका उसका लेवल डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है, ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी में जाता है। ठीक है, सबसे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी कहा जाए, जो सबसे लास्ट नंबर पे अगर कहा जाए तो वो यूज़ होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। और सबसे गुड वन कहा जाए कि कौन सा बेस्ट है आपका, तो दैट इज़ अ इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट इज़ अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके, क्योंकि इसमें अपर पार्ट में आपका CSS है एंड लोअर पार्ट में आपका HTML है। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ डिलीट होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती हो। सो दैट इस वजह से कह सकते हो, यू कैन से दैट इंटरनल स्टाइल शीट इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके। एंड इनलाइन स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट की आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर इंटरनल के बाद कहा जाए तो आपकी इंटरनल के बाद जो प्रायोरिटी आएगी वो आपकी इनलाइन की आएगी। सो दैट वन इज़ अ सेकेंड प्रायोरिटी, ये आपकी सेकेंड प्रायोरिटी है। ठीक है, एंड लास्ट इज़ द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, वो तो हमने आपको बताया ही गया। लोवेस्ट प्रायोरिटी क्यों होती है वो भी बता दिया कि इसमें डिलीट होने के चांसेस ये रिस्क बेसिस पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे लो होती है। ओके क्लास, तो ये आपका टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट, प्रेसिडेंस ऑफ स्टाइल शीट और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिया। अब इसमें जो हम एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप इसमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी, वही सारी प्रॉपर्टी है बट थोड़ा सा इसमें कुछ आप अलग एक प्रॉपर्टी की तरीके से यूज़ कर रहे हो। जो आप HTML में एज एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे वैसे इसमें प्रॉपर्टी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतनी चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम आपको कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे इससे रिलेटेड। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा कि चीज़ें तो आ रही होंगी लेकिन इसका यूज़ कैसे करेंगे वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एड प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके क्लास, थैंक यू।